السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ رات گئے حکومت کے مذاکرات ہوئے اور یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور یہ طے ہوا کہ جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکنان گرفتار ہوئے تھے ان تمام جو ہے کارکنان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ اس جو معاہدہ طے ہوا اور جب شیخ رشید وفاقی وزیر مذہبی امور جو پیر نور الحق قادری ہیں اور پاکستان کے مختلف جو ادارے ہیں ان کے افسران بھی اس معاہدے میں شامل تھے، لاہور میں یہ معاہدہ ہوا۔ رات دیر تک اس معاہدے کے مختلف نکات پر اتفاق ہوا، ایک قرارداد پر اتفاق ہوا، اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ صبح صبح شیخ رشید احمد کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے یہ ساری بات تھی اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ 9:30 بجے کے بعد جو قومی اسمبلی کا اجلاس جو کل ہو چکا تھا، اور اب یہ اجلاس جمعرات کو دوپہر 2 بجے ہونا تھا، لیکن خصوصی اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی نے فوری طور پر 9:30 بجے قریب طلب کیا۔ اس کے بعد اس کے جو ایجنڈا تھا اس کی پرنٹنگ ہوئی۔ اس دوران ارکان کو جو فون کر کے بلایا گیا، بہت سارے ارکان موجود بھی نہیں تھے، اور یہ بہت بڑا چیلنج بھی تھا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو اس اجلاس کے اندر شرکت پر جو ہے وہ آمادہ کیا جائے، یا اتنا اسپیس ہو کہ اگر لوگ باہر بھی چلے گئے ہیں اپنے حلقوں کی طرف اپنے علاقوں میں تو وہ کس طرح واپس لوٹیں۔ بہرحال اسپیکر تو اناؤنس کر چکے تھے، قومی اسمبلی کا ایجنڈا جاری کیا گیا تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں کیا کیا ہوا اور کس نے کیا بات کی، ہم موٹے موٹے نکات اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو قرارداد آج قومی اسمبلی میں پیش ہوئی اس میں اصل میں تھا کیا، اور اس میں بقول حکومت کے کہ یہ تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اور وہاں ہی یہ قرارداد جو ہے وہ لکھی گئی تھی اور وہیں پڑھ کر سب کو سنائی گئی تھی، وہی قرارداد قومی اسمبلی میں بھی پیش کی گئی۔ تو پہلے اس کا متن جاننا ضروری ہے تاکہ بعد میں ہم آگے چلتے ہیں۔ قرارداد کا متن یہ ہے کہ یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کا اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے، لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ تمام یورپی ممالک بالعموم فرانس بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 3، تمام مسلم ممالک سے اس معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ نیچے پھر چند جملے یہ لکھے گئے ہیں کہ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ مزید برآں صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روزمرہ کے معمولات زندگی میں
किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। अच्छा, आज तकरीबन कोई 1 घंटे की ताख़ीर के बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और इसमें 1 घंटे की ताख़ीर इसलिए हुई कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस आए। पार्लिमानी पार्टी का उन्होंने इजलास तलब किया था, उसकी सदारत की और जो अपने तमाम अरकान थे उनको इस हवाले से एतमाद में लिया। शेख रशीद ने जो सारी सूरत हाल थी, रात को जो मुआहदा हुआ था उसके बारे में भी जो है वो सारी तफसीलात बताईं। उसके बाद 1 घंटे बाद ये इजलास शुरू हुआ तो उसमें कुछ नई चीज़ें सामने आईं, यानी कि कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे था। इस दौरान स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI को पैगाम भेजा गया कि वो उनके दफ्तर में आएँ, वो बातचीत करना चाहते हैं। ज़राए बताते हैं कि JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के दफ्तर जाने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुबह से ही जैसे ही ये इजलास तलब किया गया तो हमारे ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो तमाम अरकान असम्बली हैं उनकी जो है वो वर्चुअल कोऑर्डिनेशन हुई, चैट हुई। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल थे। उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान का ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करनी चाहिए। जो हुकूमत ने रवैया अख्तियार किया है उस पर बात की जानी चाहिए और कल जिस तरह हुकूमत ने बिहेव किया था उस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बेशतर तादाद थी जिनका कहना था कि कौमी असम्बली के इजलास में जाया ही न जाए और उसका बाइकाट किया जाए। इसीलिए आज पीपल्स पार्टी शरीक नहीं हो सकी और उसका एक सबब ये था कि सुबह से ही इस तरह की सूरत हाल जो है वो मीडिया के अंदर चल रही थी कि और उसमें कहा यह गया था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। हालांकि अगर पेश करने तक की बात होती तो शायद मुमकिन था कि पीपल्स पार्टी शिरकत करती, लेकिन आज के इजलास में पीपल्स पार्टी की गैर मौजूदगी में जो क्या क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा और JUI का क्या रवैया था, ये बड़ी अहम बातें हैं और उसका सुनना भी ज़रूरी है। आज ये मुआहदा हुकूमत ने किया, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत के किसी वज़ीर ने जो है वो ये करारदाद पेश नहीं की। आप अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत ने जिस तरह की ये करारदाद पेश की है, ज़ाहिर है कि उसमें फ़्रांस के सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर करने की ऐसी कोई बात नहीं है और कहा गया है कि इसके ऊपर कौमी असम्बली बहस करे। जबकि साथ साथ ये भी कहा गया कि किसी भी जत्थे को, किसी भी शख्स को, किसी भी गिरोह को ये अख्तियार नहीं है कि वो मुल्क की खारजा पॉलिसी के अंदर मुदाखलत करे या उसके हवाले से कोई डिक्टेट करे। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा हुआ था उसमें से तो यही लगता है कि शायद वो भी मजबूर हो गए थे और हुकूमत भी मजबूर थी, तो इन दोनों ने जो है वो एक दूसरे की जान छोड़ने में आफियत समझी और ये इस तरह का मुआहदा किया। आज पॉलिसी बयान के हवाले से शेख रशीद को बात करनी थी जो उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में भी कही, लेकिन वो भी आज उन्होंने बात नहीं की। अमजद खान न्याजी ने ये जो करारदाद थी वो पेश की, जिसके ऊपर उस करारदाद पेश करने से पहले एक जो मामूल का एजेंडा होता है उस एजेंडा को ख़त्म करके जो है वो एक मोशन पेश किया जाता है। पार्लिमानी रिवायत है, उसके तहत वज़ीर ममलिकत अली महमूद खान ने तहरीक पेश की और उस तहरीक को मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के रहनुमा हैं वो अपनी नशस्त से उठे हैं और गए हैं स्पीकर रोस्टम के पास। उन्होंने कहा कि ये तहरीक आप किस तरह मंजूर कर सकते हैं, हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। और उसके बाद वो इतने एग्रेसिव थे, गुस्से में थे कि उन्होंने स्पीकर को कहा कि ये आप को ऐवान चलाना नहीं आता, आपने इस तरह की बातें की और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं जूता उतार के आपको मारूंगा,
जिस पर जो है वो स्पीकर ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, और ये मामला चलता रहा। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को बहरहाल बात करने का मौका दिया गया, लेकिन इस दौरान स्पीकर ने कहा कि मैं आपको इस ऐवान से निकाल भी सकता हूं, लेकिन आप अपने अल्फाज के ऊपर नज़रसानी करें। शाहिद खाकान अब्बासी इंतहाई धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन एक बड़े अरसे से हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में एग्रेसिवनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खुसूसन कौमी असम्बली के इजलास में हम देखते हैं कि वो बड़े जो है वो सख्त गिर नज़र आते हैं। आज के इजलास में जो एहसन इकबाल साहब हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की और उन्होंने वज़ीर आज़म के गैर मौजूदगी के हवाले से एतराज़ उठाया, और उन्होंने कहा कि आज इस ऐवान में वज़ीर आज़म को मौजूद होना चाहिए था, और नामूस रिसालत के हवाले से जो करारदाद है वो वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी, या कोई वफाकी वज़ीर होता वो पेश करता। लेकिन इन्होंने ये जो करारदाद है वो भी एक निजी रुकन यानी हुकूमती मशीनरी जो कैबिनेट है उसके अलावा एक रुकन को ये काम दिया कि वो उसके ऊपर बात करे। आप यहाँ ये बात भी जहन में रखें कि वज़ीर ममलिकत अली महमूद खान ने कहा कि ये निजी रुकन की करारदाद है और इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। अब तय ये हुआ है कि जुमे के रोज़ इसके ऊपर बात होगी। हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि ये करारदाद है, इस पर बहस की जाए, और इस बहस के लिए एक खुसूसी कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम जमातों के जो अरकान हैं वो शामिल किए जाएं। फिर ये करारदाद उस कमेटी को रवाना कर दी जाए, वो कमेटी इसके ऊपर गौर व खौज करे और उसके बाद अपनी सिफारिशात कौमी असम्बली को भेज दे। लेकिन अपोजिशन की मुखालफत के सबब ये बात जो है वो एक तरफ नहीं जा सकी, और ये तय हुआ कि जुम्मे के रोज़ इसके ऊपर बात हो सकेगी। लेकिन आज हुकूमत ने जो तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा हुआ उस हवाले से इस ऐवान को कोई आगाही नहीं दी, और जो सबसे हैरान कुन बात थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्लिम लीग नून और JUI की मौजूदगी के बायस कौमी असम्बली के इजलास में आज नहीं आए, और उन्हें अंदाज़ा था कि शायद आज आएँ तो उनके साथ जो है वो कमी नहीं होगी, यानी उनके साथ जो फिर अपोजिशन करती, जिस तरह माजी में भी हम देखते आए हैं, आज भी ऐसा ही होना था। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बौखलाहट बिल्कुल वाज़ेह है, और जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे लगता है कि हुकूमत की परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।